اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی انک انت السمیع العلیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادی الذین اصطفی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ۔ ناظرین اکرام، غم میں ڈوبے ہوئے مومنین اور مومنات، میں اپنی جانب سے 8 شوال کی مناسبت، انہدام جنت البقیع کے روز کی مناسبت سے اس غم و اندوہ کی مراسم عزا پر تمام مومنین کی خدمت میں اور بالخصوص اپنے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اس مختصر سی گفتگو کے لیے حدیث پیغمبر کو پیش کیا گیا۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج پوری دنیا جو بھی اپنے کو مسلمان کہتا ہے وہ غور کرے، فکر کرے، غوث کرے، تدبر کرے، تفکر کرے، سوچے اور سمجھے کہ آیا کیا وہ اس حدیث کی روشنی میں مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، حقیقی مسلمان وہی ہے۔ مگر جو اسلام اور مسلمان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان سے یمن کی سرزمین چیخ چیخ کر سوال کر رہی ہے۔ یمن کے مظلومین، بھوکے پیاسے بچے، سسکتے ہوئے لوگ، کراہتے ہوئے نفوس، آہ و فغاں میں ڈوبی ہوئی آوازیں سوال کر رہی ہیں، کیا تم مسلمان ہو؟ امام حسن دیکھ رہے ہیں شہزادی فاطمہ زہرا دعائیں کر رہی ہیں، اور شہزادی نے جب ایک دیر تک دعا کرتی رہیں اور جب دعا ختم ہو گئی، مناجات اختتام پذیر ہوئی، تو امام حسن نے کہا، ماں آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا؟ آپ نے اپنے لیے کچھ طلب نہیں کیا؟ تو جناب شہزادی کونین کا وہ مشہور جملہ کہ جس میں شہزادی نے فرمایا، اجار سمت دار، بیٹا پہلے پڑوسی کا گھر ہے، بعد میں اپنا گھر ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا، مقصد کیا ہوا کہ اگر آگ لگی ہوئی ہے پڑوسی کے گھر میں بھی اور اپنے گھر میں بھی، تو انسان کو چاہیے اسلام اور مسلمان ہونے کا، اپنے کو مسلمان کہنے والے کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے پڑوسی کے گھر کی آگ بجھائے، بعد میں اپنے گھر کی فکر کرے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اجار سمت دار، پہلے پڑوسی کا گھر، بعد میں اپنا گھر۔ تو آیا کیا یہ مسلمان ہیں؟ اسلام کا وہ المناک سانحہ کہ جو آج سے تقریباً 94 سال پہلے ہوا، کہ جنت کا وہ ٹکڑا کہ جو بقیہ کے نام سے مشہور ہے، 8 شوال کا دن تھا،
सन 1344 हिजरी 21 अप्रैल का दिन 1925 सन के उस पाको पाकीज़ा और मुकद्दस जगह पर कि जहां पर तकरीबन 10,000 से ज्यादा असहाबे पैगंबर की कबूर थीं, जहां अहले बैत अतहार की कब्रें हैं, जहां पर हमारे आइम्मा ताहिरीन मदफून हैं, जहां पर उलमा औलिया इलाही के पाकीज़ा नफूस आराम कर रहे हैं, वहां पर बेलचे चलाए गए, बुलडोजर चलाए गए, और ये एक ऐसी दहशतगर्दी थी कि जिसको भुलाया नहीं जा सकता। और हर साल सारी दुनिया में इस दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज किए जाते हैं, और एहतजाज करना जरूरी है। उस पाकीज़ा और मुकद्दस जगह को कि जो जन्नत का टुकड़ा था, एक ही दिन के अंदर मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। वो पाको पाकीज़ा जगह जहां पर जिसकी जमीन ने और जिसकी मिट्टी ने पैगंबर अकरम के कदमों के बोसे लिए थे, उसको मिस्मार कर दिया गया, उसमें बुलडोजर चला दिए गए, उसकी इहानत की गई, उसके तकद्दुस को पामाल किया गया। शहजादी पर इस दुनिया ने बहुत जुल्म और सितम ढाए। शहजादी के पहलू पर जलता हुआ दरवाजा गिराया गया, लोग आग और लकड़ियां लेकर उस दर पर जमा हुए कि जहां पे पैगंबर अकरम खड़े होके कहते थे, अस्सलाम अलैका या अहले बैत नबुव्वह, ऐ अहले बैत नबुव्वत तुम पर हमारा सलाम। अभी पैगंबर अकरम दुनिया से रुखसत हुए ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा था कि कफन भी मैला नहीं हुआ था कि शहजादी को मरसिया पढ़ना पड़ा, सुब्बत अलैया मसाइबुल अन्ना, सुब्बत अलैया मिस्रन अलैया। बाबा तुम्हारे बाद मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी कि अगर दिनों पे पड़ जाती तो दिन मिसल काली रात में तब्दील हो जाती। वो शहजादी के अगर जो रोई है तो लोगों ने एतराज किए हैं, या अली फातिमा से कह दो या तो दिन में रो लिया करे या रात में रो लिया करे। वो शहजादी के जिसके रोने पर भी पाबंदी लगाई गई थी, वही शहजादी है कि बयान कर रही है, बाबा हमारे बाद ये दुनिया जमाना हमसे फिर गया है। वही शहजादी है और वही मौलाए कायनात है कि सर झुकाए हुए बैतुल शरफ में जब तशरीफ लाते हैं और शहजादी पूछती है, या अली गमज़दा क्यों हो? या अली मैंने सुना है लोग तुम्हें सलाम नहीं करते। तो शहजादी कहती है, इमाम अली कहते हैं, नहीं बिनते पैगंबर, ये वजह नहीं है। इतना ही नहीं है कि लोग मुझे सलाम नहीं करते, बल्कि अब तो आलम यह है कि अगर मैं भी सलाम करता हूं तो लोग मुझे जवाब नहीं देते। जवाब वक्त गुजरता गया, वो शहजादी 18 साल का सिन है, दीवार के सहारे असे के सहारे चल रही है। जवानी में 18 साल का सिन ही कितना होता है, कहाँ 18 साल का सिन, कहाँ दरो दीवार के सहारे, कहाँ आशा के सहारे चलती है। वो वक्त आया कि शहजादी इस दुनिया से रुखसत हुई। इमाम अली ने शहजादी को दफन किया। जब दफन कफन कर रहे थे
जब कफन पहना रहे थे तो शहजादी वो साबिर इमाम चीख कर बाहर आता है कि जनाब सलमान फारसी कहते हैं मौला आपको चीखते हुए इतने इस तरीके से रोते हुए कभी नहीं देखा गया। तो आप फरमाते हैं सलमान, फातिमा ने मुझसे बहुत बड़ा राज छुपाया। फातिमा की पसलियां टूटी हुई थी। अज़ादारों, शहजादी को दफन कर दिया गया। शहजादी दफन हो गई। सुबह नमूदार हुई। रात की तारीकी में मौला ने दफन किया था। जब सुबह नमूदार हुई और ये खबर मदीने में फैली तो लोगों ने कहा, अरे क्या बिनते पैगंबर रुखसत हो गई और हमने नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ी। चलो हम नमाज जनाजा जरूर पढ़ेंगे, हम कब्र को खोद के नमाज जनाजा पढ़ेंगे। तो इमाम अली कि जो अब तक सब्र करते रहे और सब्र का मुजाहरा दिखाते रहे, शमशीर को तेग से निकालते हैं और कब्र पे जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि किसकी मजाल है कि जो फातिमा की कब्र को खोदे और फातिमा की कब्र को खोद कर लहद से कब्र से फातिमा के जनाजे को निकाले और कब्र की बेहुरमती करे। याद रखना, जो कब्र के करीब भी अगर कोई इस नजरिए से और इस नियत से आएगा तो वो यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकता है। अली ने कब्र की हिफाजत की। लोगों ने जब देखा कि दहन से कब्ज जारी हैं, बरहना शमशीर लिए हुए हैं, तो लोगों ने कहा, या अली हम तो सिर्फ नमाज जनाजा पढ़ने की नियत से आए थे, हम अपने घरों को जाते हैं। लोग वहां से चले गए। लोग तो वहां से चले गए मगर मेरा दिल टूट गया ये देखकर। मैं कहूंगा, या अली आज बकिया में आ जाइए। या अली आपने फातिमा की कब्र की हुर्मत को बरकरार रखा, तलवार को न्याम से निकाल लिया, लोग चले गए, फातिमा की कब्र का तकद्दुस बाकी रहा। मगर या अली 1344 हिजरी में बकिया में आ जाइए। ये फातिमा की कब्र है, बुलडोजर चल रहे हैं, से चल रहे हैं। इमाम हसन की कब्र को मुनहदम कर दिया गया। इमाम मोहम्मद की कब्र, इमाम जाफर सादिक की कब्र, या अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कब्र मुनहदम हो गई। या अली मदद को आइए। मैं कहूंगा, इमाम हुसैन आपका रोजा आसमान से बातें कर रहा है। फातिमा, या फातिमा, फातिमा, मासूमा तुम, आपका रोजा आसमान से बातें कर रहा है। सातवें इमाम, इमाम बाबुल हमाइद, शाह बगदाद, आपका रोजा आसमान से बातें कर रहा है। वहाँ अपने ही वतन में इमाम हसन गरीब तैयार है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मरकज, कोई साया भी नहीं। इमाम बाकिर की कब्र पे साया है, इमाम जाफर सादिक की कब्र पे साया है, शहजादी के कब्र पर कोई साया भी नहीं है। मोहम्मद वालिया परवरदिगार आलम दहशत गर्दों के सरगनों को निस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगार आलम जालिमीन को उनके कैफर किरदार तक पहुंचा दे। अल्लाहुम्मा अशगल ज़ालिमीन बिज़्ज़ालिमीन। परवरदिगार आलम मोमिनीन की जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। जालिम को जालिमों से टकरा दे ताकि मोमिनीन व मुस्लिमीन महफूज रहें। वजल्लाहुम्मा फी फरज